Wishing a happy day. I welcome all my students in your English online class. Today we are going to start English literature. So let's go through it. Students, you can see that we are having so many lessons and it's the beginning. We are going to start with lesson number 1, 3 questions. Here we are with lesson number 1, 3 questions. It is written by Leo Tolstoy, a world famous writer. So, let us elaborate the heading. 3 questions means beta 3 प्रश्न. So, before starting the reading, let's go through pre-reading task. We are seeing that here some questions are given. Let's go through them. Suppose you want to start a new task. टास्क मीन्स होता है बेटा एक्शन, कोई काम. कहते हैं मान लो आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया काम. विल यू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस टाइम और विल यू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली. नाउ ही इज़ अगेन आस्किंग दैट कि क्या आप ऑस्पिशियस टाइम, बेटा ऑस्पिशियस टाइम मीन्स वेरी पाइस, जो सौभाग्यशाली टाइम होता है, जो बहुत शुभ समय माना जाता है, आप उसके लिए वेट करोगे या आप इमीडिएटली मीन्स तुरंत, आप जल्दी से उस वर्क को स्टार्ट कर दोगे. डिस्कस विद योर पार्टनर गिविंग रीजंस. आप अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए एंड रीजंस भी दीजिए कि विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट एंड वाई. In second, we are seeing work individually and answer the following. Now you have to work by your own. What do you think is the most important occupation? आपको लगता है कि सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है बेटा जॉब आपकी, वो काम कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट, वाई एंड हु डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल. आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग कौन से हैं. सोल्जर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स और प्रीस्ट होते हैं बेटा पुजारी. हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल अमंग द गिवन पीपल. नाउ वी सी ही इज़ अगेन सेइंग अस कंपेयर द आंसर्स with other students, and if you are finding your answer different, just discuss the reason why you went for the particular choice. Now let us start our reading of the lesson. Such a beautiful lesson and meaningful lesson is this, so be attentive class. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything. It once occurred, बेटा occurred होता है to happen, घटित होना. कहता है एक बार एक राजा के साथ ऐसा हुआ कि he always knew the right time. वो कहता है कि वो हमेशा ही ना एक सही समय को जानना चाहता था. For what? To begin everything, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले जो सही समय क्या है वो उसके बारे में जानना चाहता था. If he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, और वो ये भी जानना चाहता था कि सही लोग कौन से हैं जिन्हें सुनना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब अनदेखा कर देना चाहिए. मीन्स he wanted to knew the right time and the right people. Now let's see further. And above all, if he always knew what was the most important thing to do, और इन सबसे भी ऊपर वो ये हमेशा से ये जानना चाहता था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है करने के लिए. what was the most important thing to do. he would never fail in anything he might undertake. कहता है अगर मुझे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए ना तो मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी काम में असफल नहीं होऊंगा. You can see in the picture also the king is standing here and he is discussing about that he wanted to know about these 3 things. Let us go through what were the 3 things. Right time, right people and the most important thing to do. Now let's turn at the next page. Here we are having, and this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom. और बेटा ये जो विचार है ना उसके दिमाग में पैदा हो गए थे, अक्कड़ हो गए थे उसके दिमाग में. एंड ही हैड अ प्रोक्लेम्ड,
प्रोक्लेम्ड होता है बच्चे डिक्लेयर कर देना, किसी चीज़ की घोषणा करवा देना। कहता है उसने अपने राज्य में इस बात की घोषणा करवा दी थी that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do। तो उसने ये घोषणा करवा दी थी बेटा अपने राज्य में कि वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा, बहुत अच्छा ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत अच्छा इनाम देगा उस पर्सन को जो उसे ये बताएगा सही समय के बारे में एंड सबसे जो ज़रूरी लोग हैं उनके बारे में बताएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़रूरी काम क्या है वो उसको बता देगा। एंड लर्नेड मैन केम टू द किंग। अब बेटा लर्नेड का मतलब होता है जो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, जो बहुत जानकार लोग होते हैं, जिन्हें चीज़ों की बहुत नॉलेज होती है। कहता वो लोग राजा के दरबार में आए एंड दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, और सभी ने अलग अलग तरह से आंसर दिया क्वेश्चंस के। अब ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि सभी लर्नेड पीपल की जो अपनी अपनी ओपिनियन है वो डिफरेंट ही होगी, सो दे गेव डिफरेंट आंसर्स टू द किंग रिगार्डिंग द 3 questions। Now let's see what will happen further. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, years, and must live strictly according to it। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में एक पर्सन ने कहा कि अगर हमें सही समय के बारे में जानना है ना, तो हमें एक कहता है एडवांस में ही, एडवांस का मतलब है पहले से ही एक टेबल बना लेना चाहिए, एक चार्ट बना लेना चाहिए जिसमें मेंशन हो डेज, मंथ्स, ईयर्स मेंशन हो एंड मस्ट लीव, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली हमें लीव करना चाहिए, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। ओनली दस सेट दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम। कहता है इसी तरह से सभी कुछ जो है ना अपने प्रॉपर टाइम पर होगा। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action। अब दूसरों ने ये कहा कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, असंभव है पहले से ही जानना। बिफोर हैंड का मतलब है बेटा अर्ली टाइम, पहले से ही ये जानना कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या हो सकता है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास्ट टाइम। कहता है लेकिन फिर भी किसी को भी अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जो हमारा समय बीत चुका है, उसके बारे में सोचने में हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल। और कहता है हमें पिछले टाइम के बारे में नहीं सोचते हुए हमें अपने आप को अटेंड करना चाहिए, हमें उस वर्क को अटेंड करने में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए दैट वाज गोइंग ऑन, जो हो रहा है उस टाइम जो हो रहा है, एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और तब बेटा उसमें से जो सबसे ज़रूरी काम है ना पहले हमें उसे करना चाहिए। अदर्स अगेन सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू वॉट वॉज गोइंग ऑन। अब दूसरों ने कहा कि चाहे राजा जितना मर्जी अटेंटिव हो कि क्या होने जा रहा था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कहता है कि किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या हो सकता है, सही समय क्या हो सकता है। बट दैट he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything। लेकिन बेटा अब उस राजा ने क्या किया, एक काउंसिल बुलवाई। काउंसिल होता है बेटा जो नंबर ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय द किंग और द गवर्नमेंट टू गिव एडवाइस, जो लोग सलाह देते हैं उन लोगों की हम जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वी कॉल देम काउंसिल। अब बुद्धिमान लोगों की, विद्वान लोगों की राजा ने काउंसिल बुलवाई जो कहता है उसे हेल्प करते कि प्रॉपर टाइम, एक सही समय को फिक्स करने के लिए, टू डू एवरीथिंग, किसी भी काम को करने के सही समय को फिक्स करने के लिए। नाउ हेयर वी आर हैविंग नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स
which could not wait to be laid before a council. लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा, अब डिफरेंट पीपल थे बेटा वहाँ पर, सभी की अलग अलग अपनी ओपिनियन थी, तो फिर दूसरे लोगों ने कहा कि दैट देयर वर थिंग्स, कहता है कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कहता है काउंसिल के सामने हम नहीं रख सकते, विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, जो काउंसिल के सामने रखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, हमें उनके लिए मतलब इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वी हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजन ऑन दोज थिंग्स. तो बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक them और not. और वही बात है, कहता है कि इंसान को उस समय एट वंस हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड, लेकिन हमें डिसाइड करने के लिए, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए वन मस्ट नो बिफोर हैंड, कि कहता है किसी इंसान को पहले से ही पता होना चाहिए व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा था. इट इज़ ओनली मैजिशियन हु नो दैट. अब कहता है ये तो सिर्फ एक मैजिशियन, कोई एक जादूगर कोई पता हो सकता है कि क्या होने जा रहा था, कि अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. एंड देयरफॉर, और इसलिए, इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस. और इसीलिए सही समय के बारे में पता करने के लिए किसी भी इंसान को जादूगर की सहायता लेनी चाहिए, जादूगर के साथ बातचीत करनी चाहिए. आई होप क्लास that this paragraph is quite clear to you. Go through them once again, and students, don't forget to write. If you are finding any word difficult, open up the dictionary at once and try to catch the right meaning of that word. Keep on learning class, keep on gaining. Thank you students. Good.